آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ G20 کے تحت وومنس 20 میٹنگ میں شرکت کی غرض سے شہر آئی غیر ملکی خواتین کے وفود نے آج ہیریٹیج ٹور کے درمیان تاج دکن یعنی بی بی کا مقبرہ، اورنگ آباد کیوز اور غارہائے ایلورا کے علاوہ یہاں موجود دیگر تاریخی اثاثوں کا معائنہ کیا اور اورنگ آباد کے تہذیب و ثقافت سے بے حد متاثر ہوئیں۔ G20 کی وومنس 20 میٹنگ کے لیے شہر آئی غیر ملکی خواتین کے وفود نے آج شہر اورنگ آباد کی تاریخی وراثتوں، اورنگ آباد کے غار اور تاج دکن کہلائے جانے والے بی بی کے مقبرے کا نظارہ کیا۔ ان غیر ملکی مہمانوں کی آمد کے پیش نظر ان تاریخی اثاثوں کو مزید پر رونق بناتے ہوئے یہاں خوب تزئین و آرائش کی گئی ہے، جبکہ غاروں کے اطراف جانے والے راستوں کی دونوں جانب کو خوبصورت رنگولیوں سے سجایا گیا تھا۔ 3 AC بسز کے ذریعے یہاں آئی ان مہمان خواتین کا روایتی نواری زیبتن کی ہوئی دوشیزاؤں نے گلباری کر کے ان کا استقبال کیا اور انہیں گلاب کے پھول پیش کیے۔ غاروں تک جانے والی راہداری پر سرخ قالین بچھائے گئے تھے، جبکہ محکمہ آثار قدیمہ، ضلع و میونسپل انتظامیہ کے افسران نے بھی مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ غارہائے اورنگ آباد کے نظارے کے بعد تمام مہمان خواتین حیرت زدہ رہ گئی۔ موقع پر موجود گائیڈ نے غاروں سے متعلق تفصیلی معلومات انہیں فراہم کی۔ غارہائے اورنگ آباد کی سیاحت کے بعد یہ قافلہ تاج دکن یعنی بی بی کا مقبرہ پہنچا، جہاں نوبت اتاری وہ سنئی چوگھڑ بجا کر نہایت شاندار طریقے سے مہمانوں کا استقبال کیا گیا۔ یہاں بھی مہمانوں پر پھول نچھاور کیے گئے اور اس عظیم و خوبصورت تاریخی ورثے کا نظارہ کر کے تمام مہمان خواتین حیرت زدہ ہو کر جذباتی ہو گئیں۔ Of course, India is beautiful, and especially for this place is different and like magnificent, and then so great. We are so happy staying here. Aurangabad, a heritage city, beautiful. India is beautiful anyway. Incredible India, nature, and the heritage assets. So beautiful. This is the much more beautiful, and I'm so happy and glad to be here. Yes, as well. It was magnificent. We saw the sunset, so it was really very romantic. I would love to go back and have meditation there, and also interact with people from Aurangabad. I'm not able to pronounce the new name. I'm sorry for that. But I think it's the most beautiful place here in India. Thank you so much. I prefer this one here because it's smaller. It's very beautiful. It's very nice. And the countryside is just amazing. It's an image that the whole world knows. I know it's the Akbar version, but I've heard of the story of both the Taj Mahal and this since I was very young. We know about the two monuments. So for me it's really a dream. G20 کے تحت اورنگ آباد آئی غیر ملکی خواتین نے آج غارہائے ایلورا کی بھی سیر کی۔ دنیا اسنا ویمنس 20 کی خواتین مہمانوں کا یہ قافلہ عالمی شہرت یافتہ غارہائے ایلورا پہنچا تو یہاں بھی ان کا استقبال ہوا اور ان خصوصی سیاحوں نے ایلورا کے کیلاش کے مندر اور پہاڑیوں کو تراش کر بنائے گئے مختلف غار، ان کی نقش و نگار اور فنکاریوں کو دیکھ کر ان غاروں کے کاریگروں و صناعوں کی مہارتوں کو سلام کیا اور حیرت زدہ رہ گئے۔ اس وزٹ کے دوران ان مہمانوں کے ساتھ ساتھ ضلع پریشد کے CEO وکاس مینا، ضلع SP منیش کلوانیا، ایڈیشنل ضلع کلیکٹر ڈاکٹر اننت گوہا نے، ضلع انتظامیہ اور آثار قدیمہ شعبے کے افسران اعلیٰ موجود تھے۔ کپاس کو مناسب بھاؤ نہیں مل رہا ہے اور خانگی خریدار کسانوں کا مالی استحصال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کسان حیران و پریشان ہیں اور حکومت سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اردو کے شاعر قمر اقبال کا یہ شعر شاید ہمیشہ ہی کسان بھائیوں کی حالت زار کو پیش کرتا رہے گا کہ اس سال فائدہ یہ ہوا ہے کپاس میں، پیوند اور لگ گئے اس کے لباس میں۔ تعلقہ کنڑ کا ناچن بیل علاقہ کھیتی اور کسانوں کا علاقہ کہلاتا ہے۔ ناچن بیل اور دیگر مضافات چنچولی، لمباجی و پشور علاقوں کے کسانوں کے طبقات ان دنوں ان کی سفید سونا کہلانے والی کپاس کو مناسب بھاؤ نہ ملنے کے سبب سخت پریشان حال ہیں۔ اکثر کسان محض انتظار میں ہیں کہ آج کل میں
कपास के भाव बढ़ेंगे और हुकूमत तयक्कुदाती व मुख्तलिफ भाव से मुतालिक कोई पेश कदमी ही करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और उनकी कपास है कि घरों व खेतों में पड़ी हुई है। रोज़मर्रा के अखराजात और ज़रूरी ज़रूरियात के तहत कुछ काश्तकार जुज़वी तौर पर अपनी कपास खानगी व्यापारियों को फ़रोख्त करते हैं, ताहम ये व्यापारी मौका साध कर निहायत कम भाव देकर किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि हुकूमत फौरी इस जानिब तवज्जो दे और 11 से 12 हज़ार रुपये फ़ी क्विंटल कपास का भाव मुकर्रर किया जाए ताकि किसानों के हाथ कुछ मुनाफा ही लग सके। पर्यायी आम्ही कर्जबाजारी शेतकरी आहोत आणि कर्ज काढून आम्ही हे जे उत्पन्न मिळवलं याच्यातून आम्हाला अपेक्षित उत्पन्न तर मिळालंच नाही जास्त, पण जे आहे ते सुद्धा आमच्या घरात पडून आहे. 8,000च्या वर भाव कोणी आम्हाला मिळत नाही. त्या कारणानं शेतकरी भरपूर अडचणीत आलेला आहे. आणि तुम्ही कोणत्याही कृषी केंद्रावर जा, तिथे तुम्ही औषधीचे भाव पहा. 5-5 ग्रॅम औषधीची किंमत 500 रुपये, 800 रुपये आहे. आणि आमच्या मालाला एवढा मातीमोल भाव का मिळतोय? शासन याची दखल का घेत नाही? आणि तुम्ही इकडे दाखवतात की बा शेतकरी आत्महत्या करतो. शेतकरी का आत्महत्या करतो याची कारणं तुम्ही शोधा. हे कारणं जर तुम्ही शोधले तर शेतकरी आत्महत्या करणार नाही. आम्हाला योग्य भाव द्या, आम्हाला काहीही अनुदान देऊ नका, पण आम्हाला फक्त भाव द्या. आम्ही भावाचे भुकेले, शेतकऱ्याला काहीही नको यावर. पण आज हे घरात पडलेला माल आहे, हा विकला तर जात नाहीच, पण अजून आम्हाला त्या घरामध्ये जाता येत नाही. आमची लहान लहान मुलं आहे, ते मुलांना खास सुटलेली आहे, अंगावर त्यांच्या गाठही येतात. मग आम्ही पर्यायी काय करणार? आता शासन याची काहीच दखल घेत नाही, आम्ही तरी काय करणार? आणि मग पुन्हा तुम्ही ओरडू नका की शेतकरी आत्महत्या करतात, शेतकरी आत्महत्या करतात. त्याला कारणं असणार, हेच कारण आहे. तुम्ही याच्यात काही ना काहीतरी शासनाने याच्यावर आमच्या शेतकऱ्यावर मेहरबानी करा आणि आमची दखल घ्या, थोडीशी आमचा विचार करा आणि आम्हाला थोडासा न्याय द्या, आमच्या कापसाला भाव द्या. बस एवढं मी हात जोडून तुम्हाला विनंती करतो. ज़िला उस्मानाबाद के लोहारा में मराठी राजभाषा दिन के मौके पर एक ग्रंथ दिंडी निकाली गई और तलबा ने कवि कुसुमाग्रज को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर कवि कुसुमाग्रज को खिराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ भानुदास राव चौहान महाविद्यालय की जानिब से मराठी भाषा सप्ताह का इनेकाद अमल में आया। तलबा ने एक शानदार मराठी ग्रंथ रैली निकालकर मराठी राजभाषा दिन मनाया। भानुदास राव चौहान और शंकरराव जावले कॉलेजेस की जानिब से शहर लोहारा में ताल मुर्दंग के साथ जुलूस निकाला गया और राजभाषा से मुताल्लिक़ नारे लगाए गए। इस दिंडी में तलबा ने मुख्तलिफ मनमोहने लिबास ज़ेब-ए-तन करके जुलूस को काबिल दीद बना दिया। ये रैली शहर भर के मुख्तलिफ मकामात से होकर गुजरी और इस दौरान मुख्तलिफ चौक चौराहों पर तलबा व असातिज़ा ने खूब जश्न मनाए और फुगड़ी खेल कर खुशियों का इजहार किया। इस मौके पर शंकरराव जावले कॉलेज के डॉक्टर विनोद आचार्य, DN कोटरंगे, रेबे चिंचोली के नायब सरपंच पवन मोरे, कमलाकर शीरसाट, सैयद पटवारी, अयूब अब्दुल शेख समेत कसीर तादाद में नामवर शख्सियात और शहरियान व तलबा व तालिबात मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम तब्दील करने के बाद अब दोनों अजला और डिवीज़न का नाम तब्दील करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस पर 27 मार्च से कबल डिविजनल कमिश्नरेट में शहरियान अपने एतराज़ात व तजावीज़ दाखिल करवा सकते हैं। औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम तब्दील करने के बाद गुज़िश्ता रोज़ रियासती हुकूमत ने दोनों ही अजला और डिवीज़न का नाम तब्दील करने से मुताल्लिक़ भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक ज़िला औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर और ज़िला उस्मानाबाद धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा गज़ट नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अगर किसी को इस तब्दीली नाम से मुताल्लिक़ एतराज़ हो तो वो 27 मार्च से कबल डिवीजनल कमिश्नरेट में अपना एतराज़ या तजवीज़ दर्ज करवा सकते हैं। हुकूमत 27 मार्च से कबल मौसूला एतराज़ात व तजावीज़ पर गौर करेगी। औरंगाबाद व उस्मानाबाद अजला के तब्दीली नाम मामले पर दाखिल करदा पिटीशन पर गुज़िश्ता रोज़ बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने समाअत की और मरकज़ी व रियासती हुकूमतों को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का हुक्म देते हुए इस केस की अगली समाअत 27 मार्च को मुकर्रर की है। ये इत्तला पिटिशनर हिशाम उस्मानी और उनके वकील एडवोकेट SS खाजी ने दी है। उसको हिशाम उस्मानी साहब ने जो रीट पिटीशन फाइल किए है वो और दूसरे जो PIL है वो सभी आज बोर्ड पर थे, ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस और मारने साहब के बेंच के सामने। ये मैटर्स आज इसमें जब हियरिंग हुई
तो उस वक्त में हम लोगों ने सिविल एप्लीकेशन फाइल किए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 फरवरी 2023 को जो नोटिफिकेशन निकाला और नो ऑब्जेक्शन इशू किया औरंगाबाद का नाम रीनेम करने के लिए छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का भी नाम धाराशिव रीनेम करने के लिए, तो ये नोटिफिकेशन को हमने बाय वे ऑफ अमेंडमेंट चैलेंज किया आज। तो कोर्ट ने अमेंडमेंट अलाउ किया कि रीट पिटिशंस में ये अमेंडमेंट कैरी आउट करने का बोलकर कोर्ट ने 7 डेज़ का टाइम दिया और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को 24 मार्च 2023 से पहले रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम दिया। और ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस और मारने साहब के बेंच ने आज ये भी डिसाइड किया कि ये रीट पिटिशंस एडमिशन स्टेज पे डिसाइड करना है और इस तरीके से 27 मार्च को फॉर फाइनल हियरिंग ये मैटर्स रखे गए हैं। तो इस तरीके से आज कोर्ट में जो मैटर चला, तो इसमें सीनियर काउंसिल उशाला सर और हिशाम उस्मानी साहब की तरफ से मैं, मेरे साथ में एडवोकेट खिजर पटेल भी आज आए हुए हैं और उस्मानाबाद के लिए तड़ेकर मैडम ने भी आज आर्गूमेंट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एजी साहब ने आर्गूमेंट किया और गवर्नमेंट लीडर भी थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और एक पार्टी पर्सन भी थे जिन्होंने उस्मानाबाद के लिए PIL फाइल किए थे। तो इस तरीके से कोर्ट ने सबको अमेंडमेंट अलाउ किया है सबका, कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 फरवरी 2023 को जो नोटिफिकेशंस निकाले हैं और नाम तब्दील या चेंज करने का जो नोटिफिकेशन है, इसको अमेंडमेंट किया जाए और अब मेन पिटिशंस चलने वाले हैं 27 तारीख को। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में औरंगाबाद और संभाजी नगर की जो बारे में जो याचिका चल रही है उसकी सुनवाई हुई औरंगाबाद नामांतर के। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ता के सारे जो वकील थे उनको सुना और उसमें जो रिजॉइंडर की जो डिमांड थी वो अलाउ की कि आप लोग इसके अंदर अमेंड कर सकते हैं अपनी अपनी याचिका। उसमें जो नए नोटिफिकेशन और NOCs जो केंद्र ने और राज्य ने जारी किए हैं उसको चैलेंज करने का जो अमेंडमेंट हमने मांगा था उसको कोर्ट ने अलाउ किया है। कोर्ट ने फ़िलहाल इसमें कोई स्टे नहीं दिया, लेकिन कोर्ट ने सरकारी पक्ष को ये आदेश दिया है कि 24 तारीख तक वो अपने सारे जो भी जवाब हैं वो सारे इसमें दाखिल करें। 27 मार्च को इसकी अगली तारीख रखी गई है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगली तारीख को हम सारी बातें सुन के फिर फाइनली इसको डिसाइड करेंगे। मेरी तरफ से एडवोकेट SS खाजी साहब आज यहाँ मौजूद थे, उनको असिस्ट करने के लिए खिजर पटेल साहब यहाँ पे आए थे साथ में, और हमारे जो दूसरे याचिकाकर्ता हैं मुश्ताक साहब, उनके भी वकील मुशाला साहब और सफ़ीर साहब थे। उस्मानाबाद की तरफ से जो याचिकाकर्ता हैं उनकी भी वकील थी हमारे तड़ेकर मैडम। ये सारे यहाँ पे मौजूद थे। काफ़ी देर इस पे बहस हुई कोर्ट में और फाइनली फिर कोर्ट ने इसको 27 तारीख को रखा है। उस वक्त कोर्ट ने कहा है कि मैं सारे पहलुओं को देखकर ये इसमें जो भी फैसला है वो सुनाऊंगा। ताल्लुका सोयगांव के एक देहात में इंतज़ामिया ने देसी शराब का लाइसेंस जारी किया, जिस पर वहां की ख़वातीन मुश्तइल हो उठीं और उन लोगों ने तहसील ऑफिस पर एक मोर्चा निकालते हुए तहसीलदार का घेराव किया और एक मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया कि जारी करदा लाइसेंस फौरी मनसूख किया जाए। ज़िला औरंगाबाद के इस दूर दराज और पिछड़े हुए ताल्लुक़े सोयगांव के मज़ाफ़ात आमखेड़ा में गांव वालों को एतबाद में लिए बगैर ही वहां देशी दारू दुकान का परवाना जारी कर दिया गया, जबकि गांव के मर्द ख़वातीन की अक्सरियत इस शराब खाने के क़याम के मुखालिफ हैं। परवाना दिए जाने पर मज़कूरा साकिनान मुश्तइल व शदीद नाराज़ हो गए और उन्होंने तहसील ऑफिस पर मोर्चा ले जाकर तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें इस दुकान के सबब पैदा होने वाली खराबियों और गांव के नौजवानों व मर्दों के शराब की लत में पड़कर ख़ानदानों की बर्बादी का खौफ जाहिर किया गया और फौरी तौर पर इस शराब खाने का इजाज़तनामा मनसूख करने का मुतालबा किया गया। इस मोर्चे में आमखेड़ा की तकरीबन तमाम ही ख़वातीन और बड़ी तादाद में मर्द हजरात भी शरीक हुए। बताया जाता है कि मज़कूरा नई दुकान यहाँ एक मंदिर के करीब शुरू की जा रही है। तहसीलदार साहेबांना मी दुसरी परवानगी द्यायची नाही आणि जर त्यांना दिली तर महिला नेऊन सनी मी तोडफोड करणार आणि त्याचे जबाबदार साहेब राहणार, केंद्र साहेब आणि तहसीलदार साहेब यांना हात जोडून माझी विनंती आहे की यांना दुसरी परवानगी द्यायची नाही। जे तुम्ही ना काही खाल्लं पिल्लं असेल ते तुम्ही तुमच्या पॅकेटमध्ये ठेवायचं, पण परवानगी दुसरी द्यायची नाही। मग एवढी विनंती आहे केंद्र साहेबाला आणि तहसीलदार साहेबाला। पैठन में वाक़े हैंडीकैप तलबा के रिहायशी स्कूल में लीगल सर्विसेज कमेटी और
वकील संघ के इश्तराक से फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जिसका इफ्तिताह पैठन अदालत के फाजिल जज SN भावसार के हाथों किया गया। इस तकरीब में पैठन कोर्ट के फाजिल जज RC रोकड़े, जस्टिस BS हिंगे और जस्टिस SR मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट SN भावसार ने अपने खिताब में कहा कि अगर आप कोई अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो माशरे की मौजूद शख्सियात आपके इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आपके शाना बशाना खड़ी रहती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जिस्मानी तौर पर कमजोर बच्चों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए जायकवाड़ी इलाके में हैंडीकैप्ड तलबा के लिए रिहायशी स्कूल शुरू करने पर यहाँ के असातिज़ा और दीगर स्टाफ व मेम्बरान सोसाइटी की उन्होंने सताइश की। इस मौके पर रोटरी क्लब की जानिब से हैंडीकैप्ड तलबा में व्हील चेयर भी तकसीम की गयी। इस मौके पर पैठन घाटी हॉस्पिटल के रीडर गौतम सुवासे, रोटरी क्लब पैठन के सदर गोपाल जगताप, RB वल्ले, डॉक्टर किलारीकर, उदय पाटिल, सरकारी वकील अनिल चिंपी, एडवोकेट कमल चौहान, एडवोकेट सचिन पाटिल, डॉक्टर सचिन टोमरे, शशिकांत घेर, नागेश भड़के, प्रदन्या दिवाकर भी मौजूद थे। इस कैंप को कामयाब बनाने में स्कूल की सदर मुअल्लिमा अपर्णा हजारे, उमेश यादव खंडालकर, बाबा साहब शिरसाट, त्र्यंबक दहीफड़े, सुनीता कुलकर्णी, गणेश फटांगड़े, प्रसाद अवहाड़, शिवाजी डुकरे, नीलेश राजपूत और दीगर ने अहम रोल अदा किया। त्याचबरोबर आमच्या मनात आलं की दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक काम म्हणून आपण NGOची देखील मदत घेतली पाहिजे। त्यानुसार आम्ही रोटरी क्लबचे अध्यक्ष जगताप सरांशी संपर्क केला आणि त्यांनी लगेच शिरसाट सरांशी चर्चा करून मुलांना व्हीलचेअरची आवश्यकता आहे हे समजून घेतलं आणि त्यांच्या मार्फत रोटरी क्लब मार्फत व्हीलचेअर देण्याचं त्यांनी मान्य केलं। या ठिकाणी असं म्हणतात की एखादं चांगलं काम करायला जर आपण विचार केला तर सर्वांची आपल्याला त्याच्यात आपोआपच साथ मिळत जाते आणि चांगले उपक्रम त्यामध्ये घडून येतात। जिंदगी में कामयाबी के लिए मेहनत और लगन के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। इस तरह का इजहार ख्याल रांजन गांव में 10वीं तलबा के लिए मुनक़दा विदाइया तकरीब से खिताब करते हुए माहिरीन ने किया। तलबा ख्वाब ज़रूर देखें, ताहम इन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए शबाना रोज़ की मेहनत भी लाजिम है, क्योंकि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस तरह का इजहार ख्याल मोटिवेटर स्पीकर गौतम शिंदे ने किया। वो रांजनगांव पोल में साहेबराव पाटिल डोनगांवकर माध्यमिक विद्यालय में मुनक़िद 10वीं के तलबा की विदाइया तकरीब से मुखातब थे। ये प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ 27 फरवरी को सदर मुदर्रिस सुधाकर थोरात की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस तकरीब में मुक़र्रिर ख़ुसूसी की हैसियत से गौतम शिंदे ने रहनुमाई की, जबकि स्कूली समिति के सदर शिवाजी राव बोड़खे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर संतोष मल्लनाथ मेहमानाने ख़ुसूसी थे। मुक़र्रिरीन ने तलबा को इस मौके पर मज़ीद बेशबहा रहनुमाई की और अपनी जुस्तजू, मेहनत और लगन के साथ इस मुकाबलजाती दौर में वक्त के साथ कदम बकदम चलते हुए अपना मुस्तकबिल ताबनाक बनाने और वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में स्कूल के असातिज़ा, दीगर तलबा और गैर तदरीसी अमले ने भरपूर ताउन किया। लोकांना नाव ठेवणं फार सोपं आहे, फार सोपं आहे, बरोबर आहे, सोपं आहे की नाही? पण स्वतः शहाणा बनणं अवघड आहे, बरोबर आहे। आपण लोकांना सांगू शकतो, लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण मात्र कोरडे पाषाण। आपल्याला यशस्वी व्हायचं असेल, गुणवंत व्हायचं असेल तर चांगल्याची संगत असणं महत्त्वाचं। डॉक्टर रफीक ज़करिया कैंपस में मौजूद YB चौहान फार्मेसी कॉलेज की जानिब से 21 से 27 फरवरी के दरमियान फतेहाबाद में NSS का कैंप मुनक़िद किया गया। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक इस कैंप में कॉलेज के 50 तलबा ने हिस्सा लिया। नौजवानों का आज़म शहर और देहातों की तरक्की के उन्वान पर मुनक़दा इस कैंप के तहत तलबा ने फतेहाबाद इलाके में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई और वहाँ रास्तों के किनारे जमाशुदा कचरा इकट्ठा करके उन्हें महफूज तरीके से ठिकाने लगाया और देही अवाम को अपने अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा रखने का नेक पैगाम दिया। इसी तरह इन तलबा ने वहाँ शजरकारी भी की और पौधों व पेड़ों की अहमियत से गाँव वालों को वाकिफ़ करवाया। इसके अलावा गाँव वालों के लिए फ्री आई चेकअप कैंप और तिब्बी जाँच कैंप भी मुनक़िद किए गए। इस कैंप की इफ्तिताही तकरीब में कॉलेज के प्रिंसिपल MS डेगॉन, नेशनल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर निखिल साखड़े, अल्तमश अंसारी, इफ्तिखार सैयद और नाहिद चिश्ती के अलावा फतेहाबाद के सरपंच, ग्राम पंचायत अराकीन और साकिनान बड़ी तादाद में शरीक थे। प्रिंसिपल ने गाँव वालों को हिफ्ज़ान सेहत के लिए सफाई की अहमियत से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए सरपंच और गाँव वालों को मुबारकबाद पेश की। पारधी समाज के बेरोज़गार नौजवानों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए ज़िला उस्मानाबाद के SP ने मुअस्सर पेशकदमी की और मज़ीद 3 तलबा की ट्रेनिंग का नज़्म किया। पारधी समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं।
ताहम महज मालूमात न होने के सबब वो रोजगार के मौके हासिल करने से महरूम हैं। इस अमर को समझते हुए जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट अतुल कुलकर्णी ने पारधी समाज के तलबा की APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्चिंग में कामयाब कारकर्दगी के बाद इस समाज के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत उन्हें 3 महीनों के डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स की ट्रेनिंग और नौकरी दिलवाने का मंसूबा बनाया है और इस मकसद से फिलहाल इंदौरा गांव के 3 पारधी तलबा का इंतखाब करके आज बरोज मंगल से उनकी तरबियत का आगाज किया गया। इसी तरह मज़कूरा समाज के मजीद ख्वाहिशमंद नौजवानों को अपने करीबी पुलिस थाना या रास्त जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट ऑफिस से रुजू करने की सलाह दी गई है ताकि उनके रोजगार के लिए मुनासिब तदाबीर व कोशिशें की जा सके। इस तरह की अपील जिले के SP अतुल कुलकर्णी ने की है। आम्ही पोलीस डिपार्टमेंट वतीने कम्युनिटी पोलिसिंग पारधी कम्युनिटीमध्ये सुरू केले होते, खास करून तेरकडा आणि येरमाळ्यामध्ये इतर पारधी पिढीवरती आम्ही सुरू केलेले आहे। आज ॲक्च्युली स्किल डेव्हलपमेंटचं प्रोग्राममध्ये 3 मुलं इथं हेक्सा इंटरनॅशनल टेक्नॉलॉजीज म्हणून डेटा एंट्रीचं एक कोर्स आहे, त्याच्यामध्ये 3 मुलांचं सिलेक्शन झालं आहे। हे ॲक्च्युली सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजनाच्या अंतर्गत यांचं फंडिंग होतं आहे आणि प्रत्येक पारधी पिढीच्या युवकांना आमचं पोलीस डिपार्टमेंटकडून आव्हान आहे की तुम्ही इंटरेस्ट असलं तर आमचं जवळचं पोलीस स्टेशन तिथं तुमचं नाव वगैरे द्या, या SP ऑफिसमध्ये येऊन तुमचं नाव वगैरे देऊ शकता। तुम्हाला नक्की स्किल डेव्हलपमेंट तुमचं रोजगारचं योजना प्रत्येक पारधी पिढीमध्ये आम्ही करणार आहे। धन्यवाद। आमच्यासाठी रोजगाराची चांगली संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करत आहेत, त्याचं आम्ही स्वागत करतो आणि त्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत आणि आमची निवड झालेली आहे। तरी त्यांच्या या कामासाठी मी त्यांचा आभार मानतो। सरांनी सांगितलेलं होतं म्हणून कामाला सचिन बालाजी काळे समाज पारधी रोजगाराची संधी तिथं नाही काही, म्हणजे जास्त शेतकामच जास्त आहे अंधोरे, त्याच्यामुळे मी तिकडे गेलो आणि तिथं पण मी असं नाही की कुठं जॉबला आहे, फटाक्याच्या कारखान्यामध्येच मी कामाला होतो। त्यावेळेस SP साहेब आले होते तिथं विजिटसाठी, त्यांनी एक थोडक्यात सर्वे केला तिथं आणि त्यांच्या लक्षात असं आलं की जे शिकलेले तरुण आहेत ते शिकून हे अजून पण कुठं जॉबसाठी नाहीत किंवा कोणत्या कामासाठी कामावर नाहीत। तर त्यांच्या लक्षात असं आलं की या लोकांना काहीतरी रोजगारी संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी आणि तो विचार त्यांनी प्रत्यक्षात आणला। त्यातून आम्हाला 5 जणांची निवड झाली। मग आम्ही आता सध्या डाटा ऑपरेटरच्या ट्रेनिंगसाठी आलो होतो तिथं। परभनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ मारपीट का मामला पेश आया है। इस मामले में एक साबिक कारपोरेटर समेत 5 अफराद के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। शहर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ सफाई इंस्पेक्टर किरण गायकवाड़ के साथ बदकलामी और मारपीट का मामला शहर के नया मोंढा इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नया मोंढा के रामविलास शेडमल जी अग्रवाल ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में दरखास्त दी थी कि यहाँ वाक़ उनकी ऑयल मिल के सामने रोड पर एक गैर मजाज टपरी लगा दी गई है। इस टपरी को हटवाने के लिए कॉरपोरेशन के आला अफसरान के हुक्म पर सफाई इंस्पेक्टर गायकवाड़ वहाँ पहुँचे थे और मजकूरा पान टपरी जब्त करके कॉरपोरेशन ले जाई जा रही थी कि इसी असना समद हॉस्पिटल के सामने 4-5 अफराद ने टपरी लाद कर ले जा रहे ट्रैक्टर को रोक दिया और इस तरह सरकारी काम में रखनांदाजी करते हुए अमले व अफसर गायकवाड़ के साथ गाली गलौज की और उन्हें मारपीट की। हमलावर मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें फौरी गिरफ्तार करने के मुतालबे को लेकर कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन कोतवाली पुलिस थाना में जमा हो गए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने भी इस वाक़े की मजम्मत की गई। बहरकैफ पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मजीद जाँच जारी है। काही न बोलता काही न एखादा डायरेक्ट मारहाण करण्यास सुरुवात केली आणि सरकारी कामात अडथळा केला। त्यांना मी सांगू लागलो की आम्ही टपरी घेऊन चाललो, तुमची काही टपरी आम्ही विकणार नाहीत का, हे करणार आहेत, नॉमिनल फाईन भरून आम्ही सोडणार आहेत। तरी त्यांनी एक सुद्धा ऐकले नाही, डायरेक्ट 5 जणांनी मारहाण करायला सुरुवात केली। त्याच्यानंतर रितसर कोतवाली पोलीस स्टेशनला जाऊन आम्ही सर्व कर्मचारी सर्वांच्या उपस्थितीत गुन्हा दाखल केला। टपरी का उचलली आणि त्यांच्या मनाविरुद्ध काम झालं नाही। कार्यकर्त्याची टपरी होती, हे सन्माननीय नगरपालिकेमध्ये माजी नगरसेवक आहेत, त्यांनी त्याच्यामुळे ते माझं ऐकत नाही म्हणून डायरेक्ट मारहाण करायचं। महज गाड़ियों के शौक की तकमील के लिए 2 व्हीलर गाड़ियां चुराकर उन्हें जमा करके रखने वाले शातिर चोर को सिटी पुलिस ने धर दबोचा।
जिस के कब्जे से मुख्तलिफ कंपनियों की 9 टू व्हीलर गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। नाजरीन, मौज मज़ा करने, नाजायज़ ज़रिए से माशी कमाई, अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने या उसकी ख्वाहिशात की तकमील या महज अय्याशी के लिए गाड़ियाँ चुराने के काम मुख्तलिफ मुजरमाना ज़हन अफराद करते हैं, मगर महज चुराई हुई गाड़ियाँ जमा कर रखने और मुख्तलिफ गाड़ियों के इस्तेमाल के शौक़ में गाड़ियाँ चुराने वाले सारिक की कहानी ने पुलिस को भी महबहरत कर दिया। ये दोपहिया गाड़ियों का सारिक चुराई हुई गाड़ियाँ बेचता नहीं था, बल्कि शौकिया उन्हें जमा कर रहा था। बहरकब गुज़िश्ता रोज़ जराइम शाख के इंस्पेक्टर कल्याण शेल के जब मामूल के गश्त पर थे कि उन्हें इत्तला मिली कि N12 हडको छत्रपति नगर में एक आटे की गिरनी के पीछे खाली प्लाट पर कुछ टू व्हीलर्स खड़ी देखी गई हैं। तहकीकात के बाद पता चला कि तमाम ही गाड़ियां मसरूक़ा हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में मुलजिम शिवाजी बिकनराव चौहान को तहवील में लिया और फिर तफ्तीश के बाद सारा मामला सामने आ गया। मुलजिम एक रिकॉर्ड मुजरिम है और शहर के कई थानों में उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और 9 मसरूक़ा गाड़ियाँ बरामद कर ली हैं। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।